Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am Arshad Mahmood, teacher of A-Level Economics. Today I am going to discuss one past paper question for grade 12. This is AS Level Economics for paper 2, lecture 6. Let us read the question. Within the short video, we are going to discuss about, with the help of the diagram, explain how a production possibility curve can illustrate the concept of opportunity cost and economic growth. क्वेश्चन ये है कि पीपीसी की मदद से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट और इकोनॉमिक ग्रोथ का कॉन्सेप्ट डायग्राम की मदद से बनाएं, एक्सप्लेन करें. This is a question today we are going to address now. Let us discuss now. It is desirable to start with the definition. Production possibility curve or production possibility frontier represents the boundary between the goods and services which can be produced and for those which cannot within a particular economy. जो प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते. पीपीसी जो है, production possibility curve shows a boundary which shows the combination of two goods which can be produced by using all of the available resources efficiently. This curve is also known as production possibility boundary. It is also known as transformation curve. The maximum output which can be produced, combination of two goods can be produced with the help of available resources. PPC ये शो करता है. ये हम इसको ग्राफिकली भी देखते हैं. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री भी इसको कहते हैं और फिर इसको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं. इसके साथ ये ग्राफ है, ये पीपीसी है. In this diagram we assume that a country is producing two goods, food and clothing, and resources are utilized. If all resources are utilizing for clothing, maximum 30 clothing will be produced, and if all resources are putting in the production of food, maximum 25 food. और इसके अलावा और भी कम्बिनेशन हो सकते हैं, तो वो बी पे प्रोड्यूस कर सकते हैं, सी डी ई एफ. ये जो सारे कम्बिनेशन हैं, इनको मिलाने वाला जो कर्व है, इसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री भी कहते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहते हैं इसको. विच शोज डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ available resources in the economy with given technology and resources. Any combination inside the frontier is PPC से नीचे कोई, जैसे G है. For example, G indicate that resources are not fully utilized. Some of the resources are unemployed, idle resources in the economy. H outside the PPC shows that currently with the given resources country cannot produce at H. ये शो कर रहा है. ये पीपीसी है. अब हम ये बेसिक इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन था. अभी हम पहले अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की तरफ आते हैं, फिर इसकी तरफ आएंगे. इसकी मदद से ही हम शो कर लेते हैं. ये तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेसिकली इट इज़ द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गॉड. कॉस्ट ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गॉड. तो इन दिस डायग्राम उन्होंने यही पूछा है कि डायग्राम की मदद से शो करें. तो अगर आप ए से बी पे जाते हैं तो आप ये 5 यूनिट फूड के ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए 2 यूनिट इसके क्लोथिंग के छोड़ते हैं. यू सेक्रीफाई 2 यूनिट्स ऑफ क्लोथिंग टू प्रोड्यूस मोर 5 यूनिट ऑफ फूड. तो ये 5 यूनिट प्रोड्यूस करने की फूड की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 2 यूनिट क्लोथिंग के आए. अगर बी से सी पे जाते हैं तो 28 से, पहले बी पे आप 28 प्रोड्यूस कर रहे थे, अब 25 इसके कम हो गई है, 3 कम हुए और इसके 5 का इजाफा हुआ है, 5 मोर यूनिट. टू प्रोड्यूस 5 मोर यूनिट ऑफ फूड यू विल सेक्रीफाई 3 यूनिट्स ऑफ क्लोथिंग. दैट इज़ नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. व्हेन यू आर अगेन मूविंग फ्रॉम सी टू डी टू प्रोड्यूस मोर 5 यूनिट्स ऑफ फूड यू विल अगेन सेक्रीफाई 4 यूनिट ऑफ क्लोथिंग. 21 तक करें, 25 से 21 तक आ रहे हैं, तो 4 यूनिट आप सेक्रीफाई करें. अगेन फ्रॉम डी टू ई टू प्रोड्यूस मोर 5 यूनिट यू विल अगेन सेक्रीफाई
फ्रॉम 21 to 15, 6 यूनिट यहाँ पे सेक्रीफाई कर। ई से एफ पे आते हैं, अगेन टू प्रोड्यूस मोर यूनिट ऑफ फूड यू विल सेक्रीफाई 15 units of clothing. So we see here with the along with the graph, when you are moving here along with the curve, opportunity cost is increasing. So the shape of this curve, PPC concave shape, indicating that that the increasing opportunity cost, opportunity cost increase होती है, इसलिए इसकी शेप ये होती है। और अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सेम रहे, उतने ही पहले जितने छोड़े, तो उसमें कोई चेंज ना आए, तो उसके लिए ये कर्व है। ये कर्व इंडिकेट कर रहा है कि हर नए कम्बिनेशन पे वो पहले जितने ही कास्ट उसको बियर करना पड़ती है। अगर स्ट्रेट लाइन इस तरह कर्व हो तो इट इंडिकेट्स दैट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ कांस्टेंट। वो पहले जितने ही छोड़ता है, हर कम्बिनेशन पे पहले जितने ही सेक्रीफाई करता है। ये था कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब आ जाए इकोनॉमिक ग्रोथ पे। अब इकोनॉमिक ग्रोथ ये देखें, ये मूव कर रहे हैं ए एफ, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। ड्यू टू इकोनॉमिक ग्रोथ ये आई जे पे चला गया। विद द हेल्प ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज नाउ यू कैन प्रोड्यूस मोर आउटपुट। दोनों की आप ज़्यादा पहले से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्लोथिंग की भी an outward shift of the PPF shows that there has been either an improvement in productivity or an increase in total stock of resources available to produce different goods and services. Different goods and services को produce करने के लिए को factors of production increase होगा, labor increase होगी, skills increase होगा, education and training होगी, productivity increase होगी, basically नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो outward shift हो जाता है। improvement in economic efficiency को show कर रहा है। जैसे आप ए से सी पे चले गए, ए पे आप प्रोड्यूस कर रहे थे C1 कैपिटल गुड्स और X1 कंज्यूमर गुड प्रोड्यूस कर रहे थे, और PPC 1 पे थे आप, PPF 1 पे। इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से आगे शिफ्ट हो गया। आप अगर सपोज करें सी पॉइंट पे हैं, सी पे आप देखें कि आप X के भी इसके कंज्यूमर गुड भी पहले से ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, X1 से X3, और कैपिटल गुड भी पहले से ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हायर PPC पे आप चले गए ड्यू टू इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक ग्रोथ, एफिशिएंसी उसकी बढ़ गई है, इसमें इंक्रीज़ होगी। ये भी सेम इस तरह है। और अगर रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज ना हो रहे हो, कोई इनसाइड द प्रोडक्ट आप हों, जैसे ये कर्व है, आप X पे, X से इफ़ यू आर X इंडिकेट दैट रिसोर्सेज आर नॉट फुली यूटिलाइज। मैं पढ़ भी देता हूँ। PPF shows different combination of goods and services that can be produced with a given amount of resources in their most efficient way। ये तो उसकी डेफिनेशन आ गई। Any point inside the curve, जैसे ये X है, suggests resources are not being utilized efficiently. Any point outside the curve not attainable with the current, ये जैसे ये attainable नहीं है। तो X से अगर आप मूव करें, resources are not fully utilized here। अगर आप उन्हीं रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करें फुली यूटिलाइज, तो आप इधर से PPC की तरफ मूव करते हैं। अगर इधर मूव करें C आ गया, और इधर मूव करें A आ गया, और इधर करें तो B आ गया, तो इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होती, क्योंकि वो रिसोर्सेज यूटिलाइज नहीं हो रहे। अब उनको यूटिलाइज कर रहे हैं तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होगी इन दैट केस। इसको हम X से अगर PPC की तरफ मूव करें ना, अगर रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज नहीं हो रहे और उनको यूटिलाइज करें, दैट इज़ नोन एज शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ। X to C, X to A, कोई भी यहाँ पे भी पॉइंट हो सकता है, तो उसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होती। शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ, एग्रीगेट डिमांड बढ़ा के आप यहाँ तक प्रोड्यूस कर सकते हैं किसी भी पॉइंट पे PPC पे। ये था इसके मतलब। और लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ हो तो उसमें PPC शिफ्ट हो जाता है। ये देख, ये शिफ्ट हो रहा है ड्यू टू लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ। शॉर्ट टर्म में वो आइडल रिसोर्सेज, अनएम्प्लॉयड रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके PPC पे पहुंचते हैं। डियर स्टूडेंट, दैट वाज अबाउट द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का।